Welcome to the reading session. We shall start the session with a short meditation. Please sit down comfortably. Close your eyes and take a deep breath in. Breathe out slowly and feel that from every part of your body, all tension is released. You are completely calm, quiet, and serene. Every part of your body feels relaxed, feels calm, feels soft, and there is no tension all around. Now affirm to yourself, in the infinity of life where I am, all is perfect, whole, and complete. My unique creative talents and abilities flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. There are people out there who are always looking for my services. I am always in demand and can pick and choose what I want to do. I earn good money doing what satisfies me. My work is a joy and a pleasure. All is well in my world. Now you can open your eyes when you are comfortable. So today we will start a very, very beautiful chapter, chapter number 12, Success. I would request Anika sister to please share the screen. Anji sister, Thank did. Thank you. thank thank you. Thank you. Anji, thank you. So yesterday we all learned about work experiences, how we should find deep fulfillment in whatever we are doing. Today author is teaching us about success. We all since childhood, whenever we joined school or we went to college, we search for job or anything we do, we always have a dream inside of achieving success everywhere. In our mark sheet, we become happy, we secure grades, we secure very high marks. Eh, When we move from one class to another to a the higher classes or higher post in job, then we feel success and success makes us happy. So we will learn what is real success. Author is telling every experience is a success. So here every experience includes a failure experiences too. So author is telling that only getting high marks or getting a high post in a job is not only success, but even if we don't get a good position, even if we don't secure so much of high marks as per our desire, then also every experience is a success because success is feeling of happiness and happiness is our own original nature. So what author is telling, what does anyway? Does it mean that something did not turn out the way you wanted it to or the way you were hoping? The law of experience is always perfect. We outpicture our inner thoughts and beliefs perfectly.
You must have left out a step or an or had an inner belief that told you that you did not deserve or you felt unworthy. Now, author ऑथर ने कल भी इसी बात पे फोकस किया था एंड परसों जब हम रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ रहे थे तभी भी उन्होंने इसी बात पे फोकस किया था कि देखो आप अंदर में क्या सोच रहे हो, क्या आप अपने आप को डिजर्विंग पा रहे हो या आप अपने आप को अनवर्दी फील करते हो, या फिर आप क्या बिलीफ कैरी कर रहे हो अंदर। और ये भी कहा था कि जो चीज हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में है वो कहीं ना कहीं हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने लाइफ में, कहीं किसी और एरिया में, या फिर वो हम प्रैक्टिस नहीं करते कभी भी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो भी वो हम मन में खींचातान मची हुई रहती है उस हैबिट को लेके। तो इस वजह से हम उसको आउटसाइड वर्ल्ड में भी अट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि मन में तो वही चल रहा होता है। तो यहाँ पे ऑथर भी यही समझा रहे कि फेलियर आपके हिसाब से फेलियर का मतलब क्या है। क्या फेलियर का मतलब ये है कि आप जो चाहते थे उस तरह से चीजें नहीं हुई? तो ऑथर ये कह रहे कि एक बार अपने अंदर झांक के देखो, इनर बिलीफ में आपने जरूर खुद को ये कहा होगा कि आप डिजर्व नहीं करते हो, या फिर जरूर एक बिलीफ होगा, एक फीलिंग होगी कि मैं अनवर्दी हूँ। तो ये एक इनर चेकिंग होना जरूरी है। इट्स द सेम व्हेन आई वर्क विथ माय कंप्यूटर। इफ देयर इज अ mistake, it is always me. It is something I have done to comply with the laws I have not done to comply with the laws of the computer. It only means that there is something else for me to learn. ऑथर कह रहे कि हमेशा, अब कंप्यूटर का एग्जाम्पल ऑथर ने इसलिए दिया कि कंप्यूटर जो है वो मैन मेड है। यहाँ कंप्यूटर की खुद की कोई अलग से इंटेलिजेंस नहीं है, वो हमने क्रिएट करी है, हमने जो प्रोग्राम्स उसमें डाले हैं वो उस हिसाब से ऑपरेट करता है हमारे ऑर्डर्स पर। तो अगर हमने कोई इनपुट देने में मिस्टेक किया है तब जाके उसका आउटपुट वैसे निकल के नहीं आया। तो इसलिए ऑथर कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर वैसे ही यूनिवर्स का देखें तो यूनिवर्स को जो हम इनपुट देंगे वो वही आउटपुट हमें भेजेगा विदाउट एनी इंटरफियरेंसेस फ्रॉम हिज ओन साइड। ठीक है। तो ऑथर यही बोल रहे कि जरूर मुझे कुछ और लर्न करने की जरूरत है, इसीलिए ये कुछ आउट पिक्चर में गड़बड़ हो रहा है। The old saying, if at first you don't succeed, try again, is so true. It doesn't mean beat yourself up and try the same old way again. It means recognize your error and try another way until you learn to do it correctly. ऑथर ये कह रहे कि हमने हमेशा से ऐसे पढ़ा ही है कि अगर सक्सेस एक बार में नहीं मिल रही है तो फिर से ट्राई करो। लेकिन ऑथर यहाँ पे और एक चीज ये समझा रहे कि जरूरी नहीं है कि आप उसी ओल्ड वे में ट्राई करो। ट्राई अ न्यू वे, लर्न कि क्या एरर हुआ था ओल्ड वे में, वो एरर को फिर से रिपीट नहीं करना है न्यू वे में। ट्राई अगेन मीन्स इट डजेंट मीन कि फर्स्ट टाइम जो जैसा जो किया था उसी को ही सेकंड टाइम दोहरा दे। सेकंड टाइम करना है लेकिन एरर्स को जानते हुए एंड न्यू मेथड्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, तब तक करने हैं जब तक हम करेक्टली उसको ना कर ले। आई थिंक इट इज आर नेचुरल बर्थ राइट टू गो फ्रॉम सक्सेस टू सक्सेस ऑल आर लाइफ. If we are not doing that, either we are not in tune with our inner capabilities, innate capabilities, or we do not believe it can be true for us, or we do not recognize our successes. ऑथर कह रहे हैं कि ये तो हम सबका, ईच सोल, सबका बर्थ राइट है कि हम हर लाइफ एक्सपीरियंसेस में सक्सेस को फील करें। लेकिन अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो ये चीज समझना जरूरी है कि या तो हम अपने इन्नेट कैपेबिलिटीज के साथ ट्यून में नहीं है,
हम समझते ही नहीं है कि हमारे इन्नेट कैपेबिलिटीज है क्या। हम में भी खूबियां परमात्मा ने हर एक सोल में खूबियां स्पेशल भरी है। हर कोई एक दूसरे से यूनिक है, डिफरेंट है, बहुत सारे टैलेंट्स एंड एबिलिटीज के साथ है। या तो हम उसको पहचान नहीं पाए हैं, या तो हमने कहीं ना कहीं ये चीज अपने लिए ना फिक्स ही कर लिया है कि आई डोंट डिजर्व, तो इसलिए भी चीजें हमारे साथ नहीं बन रही है। या हम अपने सक्सेसेस, जो हमने छोटी छोटी सक्सेसेस हर कोई पाई होती है, एक्सपीरियंस की होती है, उनको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो ऑथर कह रहे, व्हेन वी सेट स्टैंडर्ड्स दैट आर टू हाई फॉर वेयर वी आर एट दिस मोमेंट, standards we cannot possibly achieve right now, then we will always fail. तो ऑथर यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि आज सपोज मैं स्टैंडर्ड 1 की पढ़ाई कर रही हूँ और अचानक से मुझे प्रमोशन लेने का मन है और मैं स्टैंडर्ड 4 की पढ़ाई करने में लग जाऊँ, तो मैंने अपने कैपेबिलिटीज से बाहर एक हाई स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर लिया है। तो मैं फेल ही होंगी। मुझे स्टैंडर्ड 2 की पढ़ाई करनी होगी, तो फिर वो एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड होगा जिस पे मैं वर्क भी कर पाऊंगी, मैं स्टेप्स ले पाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। और अगर मैं हाई पूरा स्टैंडर्ड लगा लूं कि नहीं नहीं, जैसे हम ऐसे करते हैं, एग्जाम्स है पास में तो लगता है कि एक ही दिन में भी 5 चैप्टर खत्म कर लेते हैं, वो मन ये सब टारगेट से ही इतना भारी हो जाता है ना, वो एक चैप्टर भी नहीं करता। वही हम सोचे कि भाई चलो आधा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो आधा से हम एक में पहुंच सकते हैं। तो वही फिजिबल टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है। Now, when a little child is learning to walk or talk, we encourage him and praise him for every tiny improvement he makes. The child beams and eagerly tries to do better. In this way, in this, the way you encourage yourself. Is this the way you encourage yourself? ऑथर पूछ रहे हैं कि जैसे हम छोटे छोटे बच्चे को, ये हम सबने मैक्सिमम एक्सपीरियंस किया होगा कि एक छोटा बच्चा जब वो चलने लगता है, जब वो बोलना शुरू करता है, हम सब कितना इनकरेज करते हैं, हम तालियां भी मारते हैं, हम खुश होते हैं, उसको गले से लगाते हैं कि वाओ आपने फर्स्ट स्टेप लिया, वाओ कुछ बोला, हम कितना खुश होते हैं। तो उस वजह से उसकी आंखें खुशी से पूरी बड़ी हो जाती है, चमकने लगती है, और वो फिर से और ट्राई करने को रेडी होता है। इस तरह से क्या आप अपने आप को अपनी छोटी छोटी कामयाबियों में, बड़ी बड़ी नहीं, बड़ी बड़ी तो हम धीरे धीरे अचीव करेंगे, छोटी छोटी, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, आपने एक पैराग्राफ कंप्लीट किया, डू यू कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ कि वाओ आपने एक पैराग्राफ कंप्लीट किया? या आप अपने आप को कोस देते हो कि बस एक ही पैराग्राफ किया, ये भी कोई स्पीड है, ये भी कोई करने का तरीका है? क्या सेल्फ टॉक होती है? एक छोटे बच्चे की जैसे एनकरेज करते हो या नहीं करते हो, एक क्रिटिक करते हो खुद के ऊपर? Or do you make it harder to learn because you tell yourself that you are stupid or clumsy or a failure? आप अपने आप को क्या टाइटल देते हो? क्या आप एनकरेज करते हो खुद को कि चलो मैंने एक पैराग्राफ में ये बातें सीखी है, अब खुश होना है इस बात पे, क्योंकि लर्निंग इज सो मच ऑफ नाइस थिंग। मैंने एक जगह एक बहुत ब्यूटीफुल क्लास सुनी थी, उन्होंने, बहुत बड़े भाई थे वो, उन्होंने एक बात कही कि लोग बोलते कि कर्मों का फल कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि अरे अगर आप डीपली रियलाइज करो तो वो इंस्टेंटली मिलता है। आपने अगर अच्छा काम कुछ भी किया तो तुरंत ही खुशी मिलती है, तो वो भी तो कर्म का फल है ना। तो उस तरह से है कि अगर हम कुछ पढ़ते हैं, चाहे वो एक पैराग्राफ पे पढ़ते हैं, अरे उस टाइम पे तो हमने कुछ एक नया चीज सीखा, तो अ, उस समय पे खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, और खुद को ऐसे टाइटल्स नहीं देने कि स्टूपिड हूँ मैं, तो ये क्या स्पीड है, मैं तो फेलियर ही हूँ और फेलियर ही रहूंगी, अगर ऐसे
रिसाइटल देंगे तो वी विल नॉट एबल टू फील सक्सेस. Many actresses and actors feel they must be performance perfect when they arrive at the first rehearsal. I remind them that the purpose of rehearsal is to learn. यहाँ पे ऑथर ने एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स के एग्जाम्पल दिए हैं. तो ऐसे ही अ, हम सोचते हैं कि हम फर्स्ट टाइम में ही कोई भी काम करें तो हम परफेक्ट हो जाए, हम उसमें 100% मार्क्स सिक्योर कर ले. लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि जो रिहर्सल्स होती है, जो जैसे कि स्कूल में भी जो छोटे छोटे यूनिट टेस्ट होते हैं, ऑल दोस आर द एक्सपीरियंसेस टू लर्न. वो लर्न करने के लिए होता है. रिहर्सल आर हैज अ पर्पस टू लर्न. उसमें परफेक्ट होने की बात नहीं होती. तो रिहर्सल इज अ पीरियड ऑफ टाइम टू मेक मिस्टेक्स. उसमें मिस्टेक्स किए जा सकते हैं. टू ट्राई न्यू वेज एंड टू लर्न. ओनली बाय प्रैक्टिसिंग ओवर एंड ओवर डू वी लर्न द न्यू एंड मेक इट अ नेचुरल पार्ट ऑफ अस. जैसे अगर हमें गुस्सा करने का बहुत ही गहरा आदत है, या फिर दुखी फील करने का आदत है, या अटैचमेंट हो जाने का बहुत आदत है, तो फिर अब हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो बाय प्रैक्टिसिंग स्लोली स्लोली स्लोली, तब वो नेचुरल पार्ट हमारा एक दिन बन जाएगा और हम एज अ डिटैच्ड वॉरियर होंगे. तो कोई भी चीज, जैसे एक बच्चा ABCD जब सीखता है तो वो कितनी बारी ABCD लिखता है. तो हमें बुढ़ापे तक भी ABCD जरूर याद होता है, चाहे हम और कुछ भूल भी जाए. तो वैसे ही प्रैक्टिस से धीरे धीरे वो हमारा नेचुरल पार्ट बन जाएगा. When you watch an accomplished professional in any field, you are looking at innumerable hours of practice. ये ऑथर ने ये, कोई भी प्रोफेशनल को देखते हैं, कोई भी एक्सपर्ट को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक्टर की बात की जाए तो हम अमिताभ बच्चन को ले लें या शाहरुख खान को ले लें. आज तक भी उनको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया, चाहे कितने ही न्यू एक्टर एक्ट्रेसेस आ गए हो. क्यों? क्योंकि उनका इनन्यूमरेबल आवर्स ऑफ प्रैक्टिस रहा है. Don't do what I used to do. I would refuse to try anything new because I did not know how to do it and I did not want to appear foolish. Learning is making mistakes until our subconscious mind can put together the right pictures. So, author यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि डोंट डू व्हाट आई यूज्ड टू डू. जो हम पहले करते थे उसी को ही दोहराना नहीं है. या फिर हम ऐसे रिफ्यूज कर देते हैं ना कि हम न्यू थिंग्स नहीं लर्न कर पाएंगे क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि हमें कैसे करना है. आई वुड रिफ्यूज टू ट्राई एनीथिंग न्यू बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू डू इट. मैं कैसे करूँ? मैं नया चीज ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसको कैसे करना है. आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपियर. मेरे को फुलिश नहीं बनना सबके सामने नया चीज ट्राई करके. या फिर लर्निंग, तो ऑथर ये समझा रहे कि लर्निंग में तो मिस्टेक होने ही है. तो आप अगर फुलिश बन जाओगे किसी के सामने, या फिर इससे आपको रिफ्यूज नहीं करना है लर्न करने से. क्योंकि लर्निंग में मिस्टेक्स होंगे ही अनटिल एंड अनलेस, तब तक भी होंगे जब तक सब कॉन्शियस माइंड में पूरा राइट पिक्चर्स नहीं बैठ जाता कोई चीज करने का. So it doesn't matter how long you have been thinking of yourself as a failure. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी जिंदगी भर आपने अपने आप को एक फेलियर का टैग दे दिया है, कि आप सोचते हो कि मैं तो फेलियर ही हूँ. यू कैन बिगिन टू क्रिएट अ सक्सेस पैटर्न नाउ. हमेशा पावर नाउ में ही होता है, ना ही फ्यूचर में और ना ही पास्ट में. पास्ट तो चला ही गया और फ्यूचर हम हर एक घड़ी नया नया करके ला रहे हैं. तो पावर नाउ में है. इन नाउ वी हैव टू डू सम न्यू and we have to create the new pattern of success.
It doesn't matter what field you want to operate in, the principles are the same. We need to plant the seeds of success. These seeds will grow into an abundant harvest. ऑथर समझा रहे कोई भी फील्ड में हो, प्रिंसिपल सब जगह के लिए सेम ही है। आपको नए नए सीड्स, बीज बोने हैं सक्सेस के, और वो धीरे धीरे जो हम बीज बोएंगे ना, पहले तो ये बीज कि ये बिलीव दैट आई डिजर्व सक्सेस, ये बीज कि हाँ आई डिजर्व एवरीथिंग गुड इन माय लाइफ नाउ। तो वो बीज हम धीरे धीरे जो बो रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो धीरे धीरे अबेंडेंट ऑफ हार्वेस्ट में रिजल्ट करेगा। ठीक है। हियर आर सम सक्सेस एफर्मेशंस यू कैन यूज। Divine intelligence gives me all the ideas I can use. यहाँ पे कुछ कुछ सक्सेस अफर्मेशन ऑथर ने दिया है जो हम यूज कर सकते हैं अपने लिए, जो आपको पसंद आए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एक अफर्मेशन का एक आइडिया तो ले लो कि ऐसे ऐसे अफर्मेशंस हैं, और आज एक को प्रैक्टिस करो, कल दूसरा प्रैक्टिस करो, ताकि सक्सेस वाले ही डिफरेंट डिफरेंट एफर्मेशंस माइंड को मिले, वो बोर भी ना हो, और लेकिन सक्सेस के पैटर्न्स न्यू क्रिएट होते जाएं। सो एग्जाम्पल्स आर, divine intelligence gives me all the ideas I can use. Everything I touch is a success. There is plenty for everyone, including me. There are plenty of customers for my services. I establish a new awareness of success. I move into the winning circle. I am magnet for divine prosperity. I am blessed beyond my fondest dreams. Riches of every sort are drawn to me. Golden opportunities are everywhere for me. So these are the affirmation. Pick one of the above affirmation and repeat it for several days. Then pick another and do the same. Allow these ideas to fill your consciousness. Don't worry about how to accomplish this. The opportunity will come your way. Trust the intelligence within you to lead you and guide you. You deserve to be a success in every area of your life. ऑथर यही समझा रहे कि कोई एक अफर्मेशन ले लो एंड उसको रिपीट करते रहो पूरे दिन। क्यों रिपीटेशन जरूरी है, क्यों रिपीटेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो रिपीटेशन की भाषा समझता है, और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है उसको बोर लगता है, वो लॉजिकल है थोड़ा, वो न्यू थिंग्स चाहता है, वो रोकेगा कि यार एक ही रिपीटेशन कितने बार। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको ऐसा नहीं है, वो तर्क वितर्क नहीं करता, तो वो रिपीटेशन की भाषा को चुपचाप अब्सॉर्ब करता है, इसीलिए रिपीटेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कोई भी एक अफर्मेशन लो एंड उसको रिपीट कर लो बहुत दिनों तक, फिर दूसरा ले लो, फिर उसको रिपीट करते रहो, ताकि एक नई पैटर्न क्रिएट हो जाए। और वो कैसे होगा ये सब हमें छोड़ देना है, हमें बस ये सोचना है कि हम डिजर्व करते हैं सक्सेस इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ। सो हियर देयर इज अ वेरी शॉर्ट मेडिटेशन, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। तो एज अ अफर्मेशन इसको हम रीड करके आज का क्लास यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। कल नया चैप्टर पढ़ेंगे प्रोस्पेरिटी का। तो एक you can just close your eyes and withdraw your attention from the outside world. Just relax and take this affirmation into your mind. So in the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. I am one with the power that created me. I have within me all ingredients for success. आप में सारे इंग्रेडिएंट सक्सेस के हैं।
I now allow the success formula to flow through me and manifest in my world. हम ही उसको कोई ना कोई पैटर्न से रोक के रखे, तो आज इस घड़ी मैं अलाउ करती हूँ खुद को कि मेरे अंदर सक्सेस फॉर्मूला वेलकम है आप, और मेरी दुनिया में अब आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। whatever I am guided to do will be a success। मुझे डिविनिटी, मेरा इंटेलिजेंस जो है वो जहाँ पे गाइड करेगा वो सक्सेस ही होगा। आई लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस। आई गो फ्रॉम सक्सेस टू सक्सेस एंड फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। My pathway is a series of stepping stone to ever greater successes। All is well in my world। Okay, you can open your eyes whenever you feel comfortable. Thank you so Okay, much, then आज sister. Beautiful हाँ session. जी, thank you so much, sister, for joining the session। Thank you. आप कुछ टेक अवे देना चाहेंगे, आप या अनुराधा सिस्टर, कोई भी कुछ शेयर करना चाहेगा तो वेलकम है। अनुराधा सिस्टर। अ, जी ओम शांति। ओम अ, शांति। जी आज का सेशन जो था, जो सक्सेस के ऊपर था कि सक्सेस क्या है, और हम अपने खुशियों का गला घोट देते हैं कि अगर इतना इतना कुछ मिला नहीं तो मैं किसी काम का नहीं, ये जजमेंट करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है कि इट टेक्स टाइम फॉर ग्रोथ, इट टेक्स टाइम फॉर हीलिंग। और हम कंपैरिजन कंपटीशन में की दुनिया में रहते हैं, तो वही हवा हमारे अंदर भी आ जाती है कि हर जगह परफॉर्मेंस चाहिए, हर जगह नंबर्स चाहिए, हर हर जगह आपका वर्थ, आप क्या आप क्या लेकर आते हो उसी पर आपके ऊपर लाइक जज करते हैं लोग दुनिया में। तो बचपन से ही जज करते हैं पेरेंट्स। एक एक सिबलिंग, वो सिबलिंग, वो उस टाइम वो उनके संस्कार है, तो हम वो हमेशा अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे हमारा जो खुशियां है और हमारा हेल्थ है वो खराब होने लगता है, और हमें पता भी नहीं चलता है। जब एक्सट्रीम एंजाइटी आती है तब पता चलता है कि या मुझे बहुत ही क्रिटिकल सेल्फ टॉक है मेरा, और मैं बहुत कंपेयर करती हूँ। तब तक पता ही नहीं चलता जब तक कि आपको अम, बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। तो ये वूम के संस्कार ही कहते हैं, वूम ये बचपन के संस्कार है, एक्चुअली कूट कूट के भरे हैं कि हम हर जगह वैसे ही है। ऐसे कुछ नहीं कि हम घर से ही स्टार्ट होता है ये। तो ये बहुत डीप रूटेड संस्कार है कि ये हमें निकालना होता है हमारी हर छोटी छोटी बातों पर। लाइक और इनर चाइल्ड जो जो वुड्स है, ये उसको हील करने के लिए। तो ये बहुत डीप चैप्टर है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी डोंट हैव हैप्पीनेस, वी ऑलवेज चेज हैप्पीनेस, वी कांट स्टे कंटेंटमेंट, संतुष्टता नहीं आती। जी। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे आपने कि वी ऑलवेज चेज हैप्पीनेस, क्योंकि हम सोचते हैं कि कुछ कुछ परफॉर्मेंस टारगेट्स जो हमारा मन हमारे लिए बना लेता है, जब तक वो पूरा नहीं करेंगे तब तक खुशी भी नहीं मिलेगी। वी पोस्टपोन आवर हैप्पीनेस ऑल्सो। या सो यस, सारी ही बातें सही है, बचपन से ही जुड़ी भी होती है सब चीजें, तो रूट पे काम करना है धीरे धीरे, वो भी सही कहा बचपन आपने। से भी होती है, और फिर हम जो देखते हैं ना, लाइक हम जज हाँ कर लेते हैं कि ये हीरो ऐसा है, ये हीरोइन ऐसी है, ये ऐसा है। लाइक टीवी में भी जज कर लेते हैं हम हाँ बहुत। अगर अगर हम खुद को जज करना, हमारा सेल्फ टॉक चेंज करना होता है, तो हम दूसरों को भी जज करना बंद करना पड़ेगा।
तभी हम खुद को जज करना बंद कर सकेंगे। राइट we राइट। judge others actually, we judge everyone, we judge। अगर आप कोई होटल जाओ या कोई कॉफी पियो, ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं, वहां वाली अच्छी थी, ये भी जजमेंट ही हुआ ना। हाँ एग्जैक्टली, कंपैरिजन एंड जजमेंट। हाँ। और फिर हम जाते हैं कहीं भी हॉलिडे, तो हम पिछले पिछले बरस अच्छा था, वो जगह अच्छी थी, ये जगह क्या हुआ। हर हम्म। जगह हर चीज में हम जजमेंट करते हैं। ये जजमेंट ही क्या होता है, अम, ये जजमेंट के संस्कार बहुत सूक्ष्म है और हमारे अगेंस्ट ये वर्क करते हैं हमारे अंदर। जैसे ही जजमेंट हम करते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स आते हैं, और हमारी ये जो गुड हार्मोन्स वो कम हो जाते हैं, और एंजाइटी बिल्ड होती है। और हमने कितनी ऐसे धारणाएं पक्की कर ली, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा कामयाब होगा तो ही वो अच्छा मतलब परफॉर्म किया है अपनी लाइफ में, या फिर एक एग्जाम्पल छोटा सा, कि हमने ये धारणा बना ली है कि जो गोरी और पतली लड़कियां होती है वही सुंदर होती है। तो जो जो फिर सांवला रंग है या फिर जो शॉर्ट हाइटेड है वो फिर हमेशा कंपेयर करते हैं कि मैं वैसी नहीं हूँ, जी जी इसलिए कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स लगा के खुद को गोरा करते हैं, हम सांवला रंग कम पसंद करते हैं। तो वो भी कंपैरिजन हो गया, एंड फिर हम अपने सांवले रंग के साथ सक्सेसफुल फील ही नहीं करेंगे। तो हर चीज में जी हमने एक धारणा भी बना ली है कि ये चीज ऐसा है तो ही ठीक है, नहीं तो नहीं। जी। पर ये बिना मेडिटेशन के ये संस्कार नहीं जाएंगे। हर दिन हमें शांत करना होता है मेडिटेशन, और हमें लिखना होता है कि आज मैंने ये जज किया, आज मैंने ये किया। हाँ। यस तभी यस। वो हम बाहर आ सकेंगे, नहीं तो नहीं सेल्फ होता। चेकिंग। या एकदम वी नीड एकदम। टू राइट जर्नल। हाँ जर्नलिंग बहुत हेल्प और करती है फिर पहले। हमें लाइक जो हमको तो जज हो हम तो शिकार हो चुके हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों के प्रति भी लाइक जो छोटे बच्चे हैं उनको जज नहीं करना है। तो हाँ राइट। एटलीस्ट वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। तो कर्म बन जाता है। जान ज्ञान तो पता नहीं था तब, अब ज्ञान पता होने के बाद भी अगर हम जज कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा कर्म बन जाता है। हम्म। जी। राइट। जी अच्छा था ये सेशन तो वैसे। हाँ जी, सब हम्म, दिन कुछ ना कुछ नया लर्न करने को ही मिल रहा है हम सबको। हाँ जी। जी, ये सब ह्यूमन सिस्टम। सॉरी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। जी ये सभी लाइक हमारी भावनाएं और इंटेंशंस की शुद्धि के बारे में बताते हाँ। हैं। और तो यस यस। हम कितने प्योर थिंक करते हैं अंदर, उतना ही हम हमारा हेल्थ और रिलेशनशिप उसी के आधार पर बनता है। जितना हम जो हम सोचते हैं वही अगर हम अंदर और बाहर दोनों एक ही तरह होना चाहिए। राइट राइट। हाँ जी सिस्टर। हाँ जी। ओके। तो हाँ आज का सेशन यहाँ पे वाइंड अप करते। ओके। जी। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।